السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی اندھیر نگری کا وزیر۔ عرصہ گزرا، کسی شہر میں غلاب نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی تھا، کسی دفتر میں چپراسی کا کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی لڑاکا اور خراب قسم کی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے میاں سے کہا کرتی تھی کہ کہیں پردیس میں جا کر نوکری کرو، یہاں تنخواہ بہت کم ہے، میں اس تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتی، نہ ہمارے پاس کپڑے ہیں نہ زیور ہے، روکھا سوکھا کھانے کو ملتا ہے۔ غلام سنتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ آخر روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے بیوی سے کہا، اچھا نیک بخت، میں کل جاتا ہوں، رات کو میرے ناشتے کے لیے روٹی پکا کر رکھنا، سویرے ہی چلا جاؤں گا۔ بیوی تو خدا سے چاہتی تھی، خوشی خوشی میاں کے ساتھ کے لیے پراٹھے پکائے، قیمہ بھونا، 2 جوڑے کپڑے اوڑھنے کے لیے کمبل ایک دری میں رسی سے باندھ کر رات ہی رکھ دیا اور کہا، جب تک بہت سا روپیہ نہ کما لو واپس نہ آنا۔ غلاب کے باپ نے مرتے وقت 300 روپے دیے تھے، وہ اس نے اپنی کمر سے باندھ لیے اور بہت سویرے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ شہر کے باہر نکلا تھا، کیا دیکھتا ہے سڑک کے کنارے آدمیوں کا ہجوم ہے، کوئی قہقہا لگا رہا ہے، کوئی لا حول ولا پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا جا رہا ہے ہمارا دماغ تھوڑی خراب ہے، ٹھگ ہے ٹھگ۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ بھی مجمع میں جا کر کھڑا ہو گیا کہ شاید کوئی تماشا ہو رہا ہے۔ وہاں اس کو ایک بزرگ صورت شخص نظر آئے۔ وہ کھڑے کہہ رہے تھے، کوئی ہے جو 100 روپے میں ایک بات خریدے؟ یہ سوچنے لگا وہ کیسی بات ہوگی جس کے وہ 100 روپے مانگ رہا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 300 روپے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کیوں نہ میں 3 باتیں خرید لوں، شاید کام آئیں۔ وہ آگے بڑھا اور ان صاحب سے کہا، جناب میرے پاس 300 روپے ہیں، میں 3 باتیں خریدنا چاہتا ہوں۔ تمام مجمع اس کی بیوقوفی پر ہنسنے لگا۔ ان بزرگ نے اس کو علیحدہ لے جا کر کہا، میاں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کبھی تم سفر پر جاؤ تو کسی کو اپنے ساتھ ضرور لے جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا بستر اپنے ہاتھ سے صاف کر لیا کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے دروازے بند رکھنا۔ غلاب نے اپنے دل میں کہا، یہ تو کوئی خاص باتیں نہ بتائیں۔ بہرحال اس نے تینوں باتیں لکھ کر رکھ لیں اور 300 روپے دے کر کہا، آپ مجھے کہاں مل سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کے پاس آنا چاہوں تو کس شہر میں آؤں؟ انہوں نے جواب دیا، میاں اندھیر نگری کا وزیر ہوں، وہاں مل سکتا ہوں۔ غلاب ان کو سلام کر کے آگے بڑھا۔ اس کے پاس 2-3 روپے تھے جو اس کی بیوی نے سفر خرچ کے لیے دیے تھے۔ شہر سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے بڑے بڑے مینڈک پھدک رہے ہیں۔ اس نے سوچا، اور تو کوئی سفر میں میرے ساتھ ہے نہیں، لاؤ ایک مینڈک ہی پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں اور 100 روپے کی پہلی بات آزماؤں۔ غرض اس نے ایک بڑا مینڈک پکڑ کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور آگے کی راہ لی۔ جب چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، بھوک پیاس سے پریشان ہو گیا تو جنگل میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا، چھاگل سے پانی نکال کر پیا اور اپنا بستر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کے کان میں عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا کالا ناگ اس کے قریب مینڈک کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے اور مینڈک بڑی خوفناک آواز سے ٹرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ گھبرا کر دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ذرا حواس درست ہوئے تو جنگل میں سے ایک لکڑی اٹھا کر سانپ کو مارا، پھر اپنا بستر اور تھیلا اٹھانے کے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں وہ سو رہا تھا وہاں سانپ کا بہت بڑا بل تھا۔ اگر مینڈک نہ ہوتا تو سانپ اس کو ڈس لیتا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ 100 روپے تو وصول ہو گئے، جان بچی تو لاکھ ہو پائے۔ اب دن ڈھلنے لگا تھا۔ کچھ دیر درخت کے نیچے بیٹھ کر آگے کی راہ لی۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں جنگل میں رات نہ ہو جائے۔ اب تو مینڈک بھی ساتھ نہیں ہے، مگر خدا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ دور سے ایک بستی نظر آئی، مکانوں میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا کہ رات ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ یہ ایک خاصا بڑا قصبہ تھا،
लोग अपने अपने कामों से फारिग होकर घरों को जा रहे थे। गुलाब लोगों से पता पूछकर एक सराय में आया। बी भटियारी ने बड़ी आवभगत से ठहराया, मियाँ मुसाफिर, इस सराय में मेरी कोठड़ी से अच्छी कोई कोठड़ी नहीं है। खाना नाश्ता सबसे अच्छा देती हूँ। और भटियारा ने तो एक वक्त दाल, एक वक्त पानी और एक वक्त शोरबा देती हैं। मैं कोरमा, पुलाव, सब्जियाँ और मुसाफिर जो फरमाइश करते हैं पकाकर खिलाती हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर मेरे पास बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। गर्ज भटियारन खाना तैयार करती रही और उसे बातें भी करती रही। हुक्का पहले ही ताज़ा करके उसके पास रख दिया था। ये बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ऐसी भी औरतें होती हैं, एक मेरी है, न कभी मेरे खाने का ख्याल करे न हुक्के को पूछे। रात को भटियारन ने सफ़ेद दस्तरखान बिछाकर साफ सुथरी रकाबियों में पुलाव कोरमा उसके आगे लाकर रखा। एक तश्तरी में खीर भी थी। पानी की सुराही और कलीदार कटोरा उसके पास रख कर कहा, मियाँ मुसाफिर, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारी कोठरी में चिराग जलाकर रख दूं और बिस्तर ठीक कर दूं। गुलाब ने ख्याल किया कि मेरे पास 2-4 ही रुपए हैं, ना मालूम ये भटियारन खाने और कोठरी का क्या मांगे। वो खाना खाकर इसी सोच में बैठा था। भटियारन ने आकर कहा, मियाँ मुसाफिर, क्या घर याद आ रहा है? क्यों चुपके हो? अब जाओ, जाकर आराम करो। गुलाब ने जवाब दिया, नहीं भटियारन, घर याद आता तो परदेस क्यों आता। मैं तो नौकरी की तलाश में निकला हूँ, कोई रोज़गार मिल जाए खुदा करे। भटियारन ने जवाब दिया, यहाँ रोज़गार की कोई कमी नहीं। सुबह अपने दलाल से कहकर वो तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देगा। इस वक्त तो जाकर आराम करो, थके हुए आए हो। गुलाब अपना थैला लेकर कोठरी में आया। पलंग पर चादर कसी हुई थी, एक तरफ तपाई पर सुराही कटोरा रखा था। उसने कोठरी के कुआड़ खोल दिए। जाड़े का मौसम था, साएं साएं हवा चल रही थी। ये खूंटी पर अपना थैला टांग कर पलंग पर कदम रखना ही चाहता था कि उसे ख्याल आया, 100 रुपये की दूसरी बात अभी आजमा कर क्यों ना देख लूं। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। बगैर बुने पलंग पर डोरियों से चादर कसी हुई थी। बड़ी देर तक वो मारे डर के कांपता रहा। जब ज़रा हवास दुरुस्त हुए तो उसने चिराग जलाकर पलंग के नीचे झांका। वहाँ उसे कुआं नजर आया। उसी वक्त वो सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, 200 रुपये वसूल हो गए, 2 दफ़ा मेरी जान बची। भटियारी अपनी कोठरी बंद करके सो गई थी। ये दबे कदमों बाहर निकला और दूसरे मुसाफिरों को जाकर खबर की। 10-12 मुसाफिर उसके साथ आए। चारपाई उठाकर देखा तो बहुत गहरा कुआं था, उसमें से बदबू आ रही थी। सारे मुसाफिरों ने सलाह की कि इस वक्त तो भटियारी कोठरी में बंद कर दो, सुबह पुलिस को इत्तला करेंगे। गर्ज पूरे सराय में शोर मच गया। सुबह सवेरे सराय में लोग जमा होने शुरू हो गए। कुएं में उतरने के लिए कोई तैयार ना होता था। बड़ी मुश्किल से 2-3 चमारों को राजी किया। मशाले हाथों में लेकर नीचे उतरे। 2-3 सिसकते हुए आदमियों को बाहर निकाला, जो शायद 1-2 दिन पहले ही गिरे थे। बाकी सड़ी गली लाशों और हड्डियों के ढेर थे, जिनको चमारों ने निकालने से इनकार कर दिया था। भटियारी को पुलिस पकड़ कर ले गई। हाकिम शहर ने गुलाब को इनाम दिया। 2-3 दिन ये यहाँ ठहरा। अब उसको अंधेर नगरी की तलाश थी। वो उन बुजुर्ग से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। उनकी नसीहत पर अमल करने से 2 मरतबा उसकी जान बची थी। एक दिन सुबह सवेरे वहाँ से रवाना हुआ। लोगों से अंधेर नगरी का पता पूछते पूछते शाम हो गई। वो एक शहर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि एक औरत खूब सोने चांदी का जेवर पहने सड़क पर खड़ी है और कह रही है कि मैं बीच सड़क पर बैठकर पेशाब कर दूं तो कोई मुझे क्या देगा। गुलाब को उसकी इस बेहुदा हरकत पर हंसी आ गई। अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान औरत ये कह रही है, उसको शर्म नहीं आती। उसको हंसता देखकर वो औरत सड़क पर बैठकर पेशाब करने लगी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, किसी ने परवाह भी नहीं की। उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि यहाँ के लोग अजीब बदतमीज़ और बदतहजीब हैं, कोई उसको मना नहीं करता। वो यही खड़ा सोच रहा था। उस औरत ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ला, क्या देता है? मैं 100 रुपये से कम नहीं लूँगी। गुलाब ने कहा, क्या बकती है, मैंने तुझे कुछ देने को नहीं कहा। तेरी बेहुदा बात पर हंसी आ गई थी।
मगर उस औरत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तू हंसा क्यों था? मैं बगैर लिए छोड़ूंगी नहीं। उसने गालियां देनी और शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग जमा हो गए। सब ने गुलाब ही को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया कि 100 रुपये इस औरत को दो। तुम हंसे क्यों थे? ये अजनबी आदमी हैरान परेशान खड़ा था कि क्या मुसीबत आ गई। उसी वक्त 2 घोड़ों की गाड़ी सड़क पर आती हुई नजर आई। मजमा देखकर कोचवान ने गाड़ी रोक ली। गुलाब ने देखा वही शख्स गाड़ी में बैठे हैं जिनसे उसने 300 रुपये की बातें खरीदी थीं। उसकी जान में जान आई। गाड़ी में वो साहब खुद उतरकर आए। उनको देखते ही लोग इधर उधर हो गए। उन्होंने डांट कर पूछा, ये क्या झगड़ा है? गुलाब ने आगे बढ़कर तमाम वाक़या सुनाया। उस औरत ने कहा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे ऊपर हंसा क्यों था? मैं कम से कम 100 रुपये इससे लूँगी। वज़ीर साहब ने कहा, अच्छा ठहरो, हम तुम्हारे झगड़े का अभी फैसला करते हैं। उन्होंने पैमाइश के फीते मंगवाए और उस औरत से कहा, अगर बीच सड़क पर तुमने ये हरकत की है तो तुमको 100 रुपये दिलवाए जाएंगे और अगर बीच ना निकली तो तुम्हें अपना जेवर इस शख्स को देना पड़ेगा। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहाँ से सड़क शुरू हुई है उसको नाप कर बताओ। गर्ज दोनों तरफ से सड़क नापी गई। एक तरफ से कम और एक तरफ से ज़्यादा निकली। वज़ीर साहब ने कहा, इस औरत का जेवर उतार कर अजनबी को दे दो। वो सिपाहियों ने उसका जेवर उतार कर गुलाब को दे दिया। वो औरत रोती पीटती अपने घर चली गई। उन्होंने गुलाब से कहा, तुम यहाँ कहाँ आ फंसे? ये अंधेर नगरी है, चलो मेरे साथ। वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए और कहा, खबरदार अब कहीं बाहर ना निकलना। इस वक्त तो मैं इत्तफाक से वहाँ पहुँच गया, वरना यहाँ के लोग तुम्हारी बहुत बुरी गुत बनाते। 1 हफ्ते तक गुलाब घर में बंद बैठा रहा। उसका जूता बिल्कुल टूट गया था। वो अपना जूता टंकवाने बाहर निकला। थोड़ी दूर पर मोची बैठा था। गुलाब ने उसको अपना जूता दिया। उसने उजरत पूछी। उसने कहा, भाई घबराते क्यों हो? कुछ दे देंगे। जूता बनाने के बाद उसने 4 आने के पैसे उसको दिए। उसने वापस कर दिए। फिर 8 आने दिए, वो भी नहीं लिए। 1 रुपया दिया, वो भी वापस कर दिया। गुलाब ने पूछा, भाई आखिर क्या लोगे? उसने कहा, तुमने तो कुछ देने को कहा था, मैं तो कुछ लूँगा। बात बढ़ गई। लोग जमा हो गए। सब ने गुलाब ही को झूठा बनाया। उसने 5 रुपये तक देने को कहे, मगर मोची ने नहीं लिए। वो तो कुछ मांगे जा रहा था। गर्ज इस तू मैं में 1 घंटा गुजर गया। वज़ीर साहब अपनी अदालत से वापस आ रहे थे। सड़क पर मजमा देख कर गाड़ी रुकवाई और झगड़े की वजह पूछी। गुलाब ने बताया कि जनाब ये किस्सा है, ज़रा जूता टकवाया था, अब मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, ये नहीं लेता। मोची ने हाथ बांधकर कहा, हजूर इसने अपनी ज़ुबान से कहा था कि कुछ दे दूँगा। मैं उससे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर साहब ने कहा, अच्छा कल सुबह हमारी अदालत में आना, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वो सलाम करके खुशी खुशी अपने घर गया। तमाशाई भी चले गए। वज़ीर साहब ने गुलाब से कहा, तुमको हमने मना कर दिया था, मगर तुम फिर बाहर निकल आए। उसने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जनाब सफ़र में पैदल चलने से जूता टूट गया था, इसको सिलवाने आया था और कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन मोची और तमाशबीन अदालत में पहुंचे। गुलाब भी जाकर खामोश खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वज़ीर साहब की सवारी आई। उनके साथ चपरासी आया। उसने पीतल की एक लुटिया लाकर रखी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मोची को आवाज़ दी गई। वो हाजिर हजूर कहकर जल्दी से आगे बढ़ा। वज़ीर साहब ने कहा, कपड़ा खोल कर अपनी चीज़ निकाल लो। मोची ने खुशी खुशी कपड़ा खोलकर लुटिया में हाथ डाला और घबरा कर चीखा, हजूर इसमें तो कुछ है। वज़ीर साहब ने कहा, तुमको कुछ मिल गया, लुटिया उठाकर ले जाओ और इस परदेसी आदमी को 100 रुपया दो और आइंदा खबरदार किसी शरीफ आदमी को तंग ना करना। उस वक्त तो हमने सिर्फ 100 रुपये जुर्माना किया है, अगर आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। चपरासी ने लुटिया के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके हाथ में दे दी। वो तकलीफ से रो रहा था। अदालत से बाहर जाकर उसने लुटिया बाहर फेंक दी। उसमें पूरा भिड़ों का छत्ता था। गर्ज गुलाब को घर के अंदर बैठे बैठे 2 महीने गुजर गए। हर तरह का आराम था। अच्छे से अच्छा खाता था, सारा दिन आराम करता। रात को वज़ीर साहब उसको अंधेर नगरी के हालात सुनाते थे। वो तन्हा रहते थे। घर के लोग दूसरी जगह थे। यहाँ का राजा रात दिन ऐश करता था। उसको अपनी रियासत से कुछ मतलब ही ना था।
स्याह व सफ़ेद के मालक वज़ीर साहब ही थे। एक दिन गुलाब का दिल बहुत घबराया। वज़ीर साहब कचहरी जा चुके थे। वो दरवाज़ा पर जाकर खड़ा हो गया। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। ये खामोश देखता रहा। कुछ देर के बाद एक काना आदमी नज़र आया। गुलाब को देखकर उसने मुँह चढ़ाया और अजीब अजीब शक्लें बनाने लगा, नाचने कूदने लगा। उसको इस आदमी की इन हरकतों पर हंसी आ गई। वो एकदम संजीदा हो गया और उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे ऊपर हंसे क्यों? मेरी आँख का मजाक क्यों उड़ाया? गुलाब ने कहा, भाई मैं तुम्हारी आँख पर नहीं हंसा था, बल्कि तुम मुँह चढ़ा रहे थे, जुबान निकाल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, मुझे हंसी आ गई। उस काने आदमी ने कहा, नहीं, मेरी आँख पर हंसते थे। अब मैं तुम्हारी आँख लूँगा। जब तक तुम अपनी एक आँख नहीं दोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस काने आदमी ने लड़ना झगड़ना शुरू किया। लोग इकट्ठे हो गए। सब ने गुलाब को घेर लिया और काने की तरफदारी करने लगे। आखिर झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि पुलिस दोनों को पकड़कर वज़ीर साहब के पास ले गई। सारा किस्सा सुनाया। काने आदमी ने कहा, हुजूर, ये मेरे ऊपर हंसा था। वज़ीर साहब ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? काने ने जवाब दिया, मैं उसकी एक आँख निकलवाना चाहता हूँ। वज़ीर साहब ने कहा, अच्छा, कल इस मुकदमे का फैसला करेंगे। तुम लोग कल सुबह हमारी अदालत में हाजिर होना। ये सुनकर वो हंसता खुश होता अपने घर गया। वज़ीर साहब ने वापस आकर गुलाब से कहा, मैंने तुमको कई मरतबा समझाया कि यह अंधेर नगरी है, तुम बाहर ना निकला करो, मगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। अब कल के मुकदमे के बाद तुम अपने घर जाओ। ये शहर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। सिर्फ मैं हूँ जो उन लोगों को ठीक करता हूँ। यहाँ बहुत से हाकिम आए और उन लोगों की हरकतों से घबराकर चले गए, मगर मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया है कि जब तक इस शहर के लोगों को ठीक नहीं कर दूंगा, इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने मुझे पूरा इख्तियार दे दिया है। गर्ज दूसरे दिन सुबह को वो काना आदमी और उसके साथ तमाशाइयों का हजूम अदालत में जमा हो गया। गुलाब भी मुल्जिम की हैसियत से जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो बहुत घबराया हुआ था। उसको डर था कि कहीं मेरी आंख ना निकाल ली जाए। वो काना आदमी उसको देखकर हंस रहा था। उसके साथी फिक्राबाजी कर रहे थे। 10 बजे वज़ीर साहब तशरीफ़ लाए। चपरासी ने वज़न करने का कांटा मंगवाया और जुलाद से कहा, चमकते हुए तेज़ नश्तर लेकर आओ। गुलाब की मारे डर के जान निकल गई। काना आदमी और उसके साथी खुश हो रहे थे। वज़ीर साहब ने उससे फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं इस आदमी की आँख चाहता हूँ। वज़ीर साहब ने कहा, अच्छा बैठो और सुनो, तुम्हारी आँख ज़रा छोटी है, मुल्जिम गुलाब की आँख बड़ी है। हम इंसाफ करते हैं, पहले तुम्हारी आँख निकाल कर तोलेंगे, फिर मुल्जिम की आँख निकाल कर उसके बराबर वज़न करके तुम्हें दे देंगे। उन्होंने कहा, उस आदमी को पकड़ो ताकि उसकी आँख निकाली जाए। काना आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हजूर, मुझे नहीं चाहिए आँख, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। खता हुई, जितना जुर्माना हजूर करेंगे मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरी आँख ना निकलवाएं। वज़ीर साहब ने चपरासी से कहा, हम 200 रुपये जुर्माना करते हैं, तुम उसके साथ जाकर रुपया ले आओ और गुलाब को दे दो। गर्ज 100 रुपये गुलाब को पहले मोची से मिले थे, 200 अब मिल गए। उस औरत का सोने चांदी का जेवर भी इसके पास था। दूसरे दिन उसने अपने घर जाने का इरादा कर लिया। वो घर में बैठे बैठे तंग आ गया था। दूसरी बात यह है कि वो अपनी बीवी को दिखाना चाहता था कि देख कितना रुपया कमा कर लाया हूँ, और जेवर भी बनवा लिया है। वो समझ रहा था कि बीवी जेवर को देखकर बहुत खुश होगी। लड़ाई झगड़ा और रोज़ रोज़ के ताने ख़त्म हो जाएंगे। औरतों को तो रुपए और जेवर से मोहब्बत होती है। गर्द उसने वज़ीर साहब से इजाज़त मांगी। वो खुद चाहते थे कि अपने घर चला जाए। अंधेर नगरी के लोग उसके दुश्मन हो गए थे, किसी दिन मार न डालें। उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी और 300 रुपये भी वापस कर दिए, जो 3 बातें खरीदने पर लिए थे। दूसरे दिन वो उनसे रुखसत होकर रवाना हुआ। चलते चलते शाम हो गई। वो उसी शहर में पहुंच गया जहां भटियारन का वाक़या हुआ था। अब वो किसी सराय में नहीं ठहरा, डरा हुआ था। एक नान बाई की दुकान पर जाकर रात गुजारी, क्योंकि उसके पास रुपया भी था और जेवर भी। ये सब चीज़ें कमर से बांध रखी थी। सुबह उठकर दुकान पर खाना खाया और आगे की राह ली। जब अपना शहर करीब आ गया तो वो एक गांव में सुस्ताने के लिए ठहर गया। भूख लग रही थी, गुड़ और चने खरीद कर खाए। कुएं पर जाकर पानी पिया
اور وہیں گھاس پر اپنا بستر سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ ساری رات کا جاگا ہوا تھا، ایسا سویا کہ شام کو آنکھ کھلی۔ گھبرا کر کھڑا ہوا، پہلے اپنی کمر ٹٹولی، جب اطمینان ہو گیا تو بستر بغل میں دبا کر چل پڑا۔ اب وہ تیز تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ سمجھا کہ بیوی گھر میں نہیں ہے، مگر دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ آنگن میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ ایک پر اس کی بیوی سو رہی تھی، دوسرے پر کوئی اور سو رہا تھا۔ حقہ پاس رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی مارے غصے کے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ اس کی بیوی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پوچھا کون ہے؟ اس نے نام بتا کر کہا جلدی دروازہ کھول ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اس کی بیوی نے جلدی سے گھر کا دروازہ کھول کر اس آدمی کو نکال دیا اور اندر سے کنڈی بند کر کے انگنائی کا دروازہ کھول دیا۔ گلاب نے ڈانٹ کر پوچھا یہ پلنگ کس کا بچھا ہے؟ اس نے جواب دیا تمہارے لیے، روز پلنگ بچھا کر دیا کرتی تھی۔ میں جانتی تھی پردیس میں تمہارا دل تھوڑی لگے گا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم واپس آ گئے، اس طرح کیا خاک کماؤ گے؟ گلاب نے پاؤں سے جوتا اتار کر کہا سچ سچ بتا یہ حقہ کس کا رکھا ہے؟ وہ بھی چلائی ارے تو اپنے ہوش میں رہ، اکیلے گھر میں رات میں پڑی حقہ گڑگڑایا کرتی تھی تاکہ لوگ سمجھے کوئی مرد بھی گھر میں ہے۔ گلاب غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ گھر کا کونا کونا تلاش کر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے آدمی کو پلنگ پر سوتے دیکھا تھا۔ اس کو اس وقت خیال نہیں رہا تھا کہ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر کھلتا ہے۔ جب وہاں آیا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کو خیال آیا 100 روپے کی تیسری بات بالکل ٹھیک نکلی۔ غرض تمام دن وہ بیوی سے لڑتا رہا۔ صبح محلے والوں کو اس کے آنے کی خبر ہوئی، سب ملنے آئے اور اس کی بیوی کی حرکتیں سنائیں۔ اس نے جو کچھ رات کو دیکھا تھا بیان کیا اور اسی دن اپنی عورت کو طلاق دے کر اس کے میکے بھیج دیا۔ محلے والوں کو معلوم ہو گیا تھا یہ کافی روپیہ کما کر لایا ہے۔ سب کی کوشش تھی کہ ان کی شادی کرا دیں، مگر اب وہ شادی کے نام سے ڈرتا تھا۔ اب اسے کسی عورت پر اعتبار نہیں رہا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔